Hello, my all JE and NEET aspirants and the student who are going to give 11th class 11th examination. Today I am going to explain the one means in one shot. Basically, here I will include formula and the questions of first chapter of chemistry, that is some basic concept of chemistry. The first thing I want to introduce that वी विल लर्न वन बाय वन. ओके, हम अच्छे से पढ़ेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उसे भी अच्छे तरीके से समझेंगे. तो आप ज़रा घबराइए नहीं, आपको बस जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे समझना है, आराम से देखना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. सभी क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज एवरेज एटॉमिक मास. In question they will give to just calculate or write the average atomic mass. It is generally the summation of isotopic mass into abundance by 100. Here I taken chlorine has two isotopes like chlorine 35 and chlorine 37 is there. Percentage abundance is given in the question. We have to calculate average atomic mass of chlorine. Now isotopic mass of chlorine is 35 and the percentage abundance is 75. And here isotopic mass of chlorine 37, that is 37 into 25, that is abundance upon 100. After calculation we got 35.5. This is the answer. Now the second one is mole concept. With mole concept generally we have to know, this is simple things but we have to know, this is very basic and the main things of the chemistry. We have to know that the number of mole is equal to given mass, that is given mass upon molar mass. Basically in question they will not tell you, means they will not tell you to just give what is the number of mole. In question we have to apply, we have to find out number of mole. In simple, I taken one question, I calculate number of mole in 18 gram of H2O. 18 gram, here it was given the given mass of H2O water, that is 18 gram, and if we calculate the molecular mass of H2O, then we come out about 18 gram. Okay, now number of mole is equal to 18 upon 18, we got 1. Here I taken one question that is came recent in 2025 in JEE Main, that X gram of benzoic acid on reaction with aqueous sodium bicarbonate that releases carbon dioxide that occupied 11.2 liter volume at STP, then X is how much gram. Basically ये यहाँ पूछना चाह रहा है, हमें इसमें बेसिक नॉलेज ये रखना पड़ेगा कि बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है और 1 मोल गैस एट STP कितना लीटर होता है. तो आपको ये पता होना चाहिए that 1 मोल गैस एट STP 22.4 लीटर होता है और बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है. अगर नहीं भी आता है फिर भी ठीक है, बट वैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर नेम वो पता चल ही जाएगा. Now here the benzoic acid react with sodium bicarbonate, it gives benzoic acid with salt and carbon dioxide with water. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. ओके, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि कितने ग्राम का आप बेंजोइक एसिड लेंगे जिस लेने पे कार्बन डाइऑक्साइड 11.2 लीटर रिलीज होगा. तो हमने रिएक्शन बना दिया. रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं अगर 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड लेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP कितना होगा 22.4 लीटर. देन 11.2 और हाफ, अगर हम इसका हाफ करते हैं तो बेंजोइक एसिड हमें कितना चाहिए, हाफ मोल. ओके, ना हमें बेंजोइक एसिड हाफ मोल चाहिए, लेकिन हमें मोल में नहीं पूछा है, हमें ग्राम में पूछा है. एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. ओके,
Now we know number of moles. We also know molar mass. We have to calculate given mass. Then we can calculate easily. Given mass is equal to mole, that we know 1 by 2 into 122, that is the molecular mass of benzoic acid, and the answer come 61 ग्राम. So अगर हम 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड लेते हैं तो 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस रिलीज होता है. ओके, द थर्ड वन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बेसिकली हमें यह जानना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है. एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? यह होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23. यह भी याद रखना बहुत जरूरी है, पूरे केमिस्ट्री में यह काम आएगा. तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है लाइक हेयर आई टेकन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 moles of CO2. Here given the number of mole 2 and we know the Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23, and if we want to calculate the number of molecules then just multiply 2 into Avogadro number and we got the answer. The another thing we can also evaluate from here that number of mole is equal to number of molecule upon Avogadro number. Okay, and we know that number of mole is equal to given mass upon molecular mass. From here we know number of mole is equal to given mass upon molecular mass. Then we can write that mass is equal to number of mole into molar mass, or number of mole also can be written as n upon Na. So mass become n upon Na into molecular mass. Okay, sometimes means they give n Na molecular mass and we have to calculate given mass, so we can apply this formula. Now vapor density, molar mass is equal to 2 into vapor density. Okay, अब आगे है परसेंटेज कॉम्पोजिशन. हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे हमें पूछेगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड. ओके, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ रहेगा. कंपाउंड बेसिकली होता क्या है? बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ होता है और एटम का कॉम्बिनेशन होता है. तो हमें कंपाउंड में एक एलिमेंट का कंपोजिशन पूछेगा. तो परसेंटेज एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट. जिस एलिमेंट का परसेंटेज पूछ रहा है उसका मास अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास इंटू 100. ये करने पे हमें परसेंटेज एलिमेंट मिल जाएगा. Here I taken calculate percentage of oxygen in H2SO4 in sulfuric acid. So molar mass is equal to 98. Mass of oxygen, they told to calculate percentage of oxygen. So we have to calculate first mass of oxygen. Mass of oxygen 16 into 4 is equal to 64. Now percentage of oxygen is equal to mass of element means mass of oxygen upon molar mass of compound, that is 98 into 100. So we got 65.3%. Okay, now the another thing we have to know, that is empirical formula. What is the empirical formula? Basically it is the simplest whole number ratio of atoms. Okay, with question we will understood this one. Here a compound contain carbon, that is 40%, hydrogen, that is 6.67%, oxygen, that is 53.33%. We have to find out empirical formula. First we have to just calculate the simple whole ratio. Means if you calculate for carbon, then the percentage upon molecular mass. Okay, so 40 upon 12 we got 3.33. For hydrogen, for oxygen, like that. If you calculate, we got this one. Now see which is the smallest number, means smallest in point also, in number also, what you got. So the smallest one is 3.33. तो हमें 3.33 से सबको डिवाइड कर देना है. सबको डिवाइड करने पे हमें एक इंटीजर होल नंबर में मिल जाएगा. ओके, अब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1,
तो हमें इससे फॉर्मूला मिल जाता है CH2O। ये मेरा इम्पेरिकल फॉर्मूला है। हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि N नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। हम पहले इम्पेरिकल फार्मूला अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम उससे एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं। जिस भी मॉलिक्यूल का पूछा है हम उस मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल हम निकाल लेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा तो उसे एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। जस्ट इजी। नाउ हियर इफ वी सी एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज गिवन CH2। आराम से धीरे से समझना है, हमें सब कुछ समझ में आएगा। ओके, एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है CH2 एंड मॉलिक्यूलर मास गिवन है 56। सो वी हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। सी जस्ट हमें क्वेश्चन में ये देखना है गिवन क्या है, हम उससे निकाल क्या सकते हैं, वो किस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, तब क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, ओके, तो सबसे पहले लिख लेना एम्पेरिकल फार्मूला। अब उससे हम क्या निकाल सकते हैं? एम्पेरिकल मास, तो निकल के आ गया 14। अब मॉलिक्यूलर मास गिवन है, एम्पेरिकल मास गिवन है, हम n नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, दैट इज कम आउट 4। Now we can calculate molecular formula. Molecular formula N into empirical formula. N is 4. Molecular formula is CH2. If we multiply 4 into CH2, we got C4H8. That is molecular formula. Okay. Now the next one is limiting reagent. What is the limiting reagent? If in a question they told to calculate limiting reagent, it is basically we have to just check or we have to just compare the ratio of given mole upon a stoichiometric coefficient. Means basically limiting reagent होता क्या है? अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कौन कम अमाउंट में है, मीन्स वो पूरा रिएक्शन में वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमें ये देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करते हैं नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। हियर इफ वी सी इन क्वेश्चन when reaction is given and here it was given that 3 mole of H2 and 2 mole of O2 are taken, then we have to find out what limiting reagent here, which is the limiting reagent, either H2 or O2. So we have to take ratio 3 upon 2. This is for H2, we got 1.5. For oxygen like that 2 upon 1. 2 number of mole and 1 that is stoichiometric coefficient. What is the stoichiometric coefficient? ये मॉलिक्यूल या एलिमेंट से पहले जो लिखा हुआ रहता है ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। here 3 upon 2, क्योंकि H2 के आगे 2 लिखा हुआ था इसीलिए हमने 2 लिया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल के आगे 1 लिखा हुआ था इसलिए हमने 1 लिया। Now if we see the smaller value is 1.5, so the limiting reagent is H2. Now if we move मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये दोनों इस चैप्टर के मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है जो बोलिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और रिसेंट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन क्वालिटेटिव और फिर कंसंट्रेशन टर्म से ही आते हैं। मीन्स लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इफ यू सी मीन्स बेसिक थिंग से आते हैं बट वो गैप कर करके आते हैं, बट कंसंट्रेशन टर्म से हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन और ये इजी भी है। बस क्वेश्चन थोड़े तोड़ मड़ोड़ के पूछे जाते हैं, हमें बस देखना है उसमें गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है, हम क्या कैसे हम फॉर्मूला में फिट करें। नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टूड मोलैरिटी. Molarity is basically moles of solute upon volume of solution in liter. इसे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर निकालना है हमें एंड ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नाउ वी अंडरस्टूड दिस विद अ क्वेश्चन दैट
we have to calculate molarity of solution that is made by dissolving 5.85 gram NaCl in 500 milliliter of water. So basically we have to calculate molarity. What we need? We need mole of solute, we need volume of solution in liter. Volume of solution is given but it is in milliliter. So we have to calculate in milliliter. We know 1 liter is equal to 1000 milliliter, or 1 milliliter is equal to 1 upon 1000 liter. Okay, so in 500 milliliter, 500 upon 1000 liter, so we got 0.5 liter. Now molarity is equal to number of moles. Number of moles we know, given mass upon molar mass. Given mass for solute, that is 5.85. So 5.85 is given mass upon molar mass. Molar mass of NaCl is 58.5. How we calculate molar mass? Molar mass is basically sodium. For sodium, atomic mass is 23. For chlorine, atomic mass is 35.5. And if we add both, we got 58.5. So from here we calculate the number of mole, that is 0.1. Now the molarity is equal to 0.1 upon 0.5. We got molarity is equal to 0.2 molar. We represent by this symbol molarity, or you can also write mole upon liter or mole per liter. Mole per liter, this -1 shows that liter is in downside. Okay, you can also write this one, mole per liter. Okay, now the next, molality. Molality is the moles of solute upon mass of solvent in kg. And the unit, what unit we got? Mole of solute, here mole, and in denominator mass of solvent in kg. So mole per kg, or we denote by small m for molality. Now very interesting questions here it was given, and it comes in JEE Main 2025, the recent question. And also this is the ये 2 कॉपी क्वेश्चंस NCERT के बुक से उठा के डाल दिया गया, मीन्स डायरेक्ट, कुछ चेंज नहीं किया गया, डायरेक्ट ये क्वेश्चन डाल दिया गया NCERT से उठा के. तो सभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट क्लियर रहना तो बहुत ज़रूरी है. तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं. नाउ फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन. डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, ये मोलर में दिया हुआ है, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर. द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, मोलारिटी अभी हमें दिया क्या है, मोलारिटी दिया हुआ है 3 मोलर, डेंसिटी दिया हुआ है किसका, सॉल्यूशन का. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है. ग्राम पर मिलीलीटर, दैट इज डेंसिटी, मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.25 और मोलारिटी दिया हुआ है 3 मोलर. हमें मोलालिटी निकालना है. ओके, तो हम इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे. मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है. मोलारिटी 3 मोल दिया हुआ है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. और हम यहाँ से कह भी सकते हैं कि मोल मेरा 3 मोल है. ओके, नाउ वी नो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ओके, now the mass of NaCl, what is NaCl here? Solute. So mass of solute, how we can calculate? Number of mole into molecular mass, and number of mole we know 3, and what is the molecular mass? Previously we calculate that is 58.5, so we got 175.5 gram. Now we have mass of solute. Now let's calculate the mass of solvent. For solvent, what it was given? Nothing is given, but solution density is given, that is 1.25 gram per milliliter. Or in solution, in 1 milliliter, the whole solution contain 1.25 gram. Or in 1 upon 1000 liter, or in 1 liter, if we calculate 1.25 into 1000 gram, we got 1250 gram of this solution, means this much gram is contained in the whole solution. Okay, we know the solution is made up of solute plus solvent. We have to calculate the mass of solvent. Mass of solvent, from here we can calculate solution minus solute.
solution we got 1250 minus solute we have 175.5. So हमें मिल गया 1074.5 ग्राम ऑफ मास ऑफ द सॉल्वेंट. मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए. अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ मोल्स 3 है और 1000 से डिवाइड करने पे 1.0745 ग्राम ऑफ केजी ऑफ द सॉल्वेंट का मास मिलेगा. फिर डिवाइड करने पे हमें मिलता है 2.79 मोलैलिटी और वी कैन राइट 2.79 मोल पर केजी. The last thing, the last subtopic in this chapter I want to tell, that is mole fraction. Mole fraction of solute they can also told to calculate, or mole fraction of this solvent. In NCERT basically it was denoted for A, that is solvent, and for B for solute. Okay, no matter, it means you can also consider anything. So mole fraction for solute or solvent, basically number of moles of solute or solvent upon, if अगर हम इसे solvent ले रहे हैं तो B को solute लेंगे, तो number of moles of solvent upon number of mole of solvent plus number of moles of solute और total moles. तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, that to calculate mole fraction of ethanol in a mixture of 2 mole ethanol and 3 mole water. इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लेना है तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करना है. तो नंबर ऑफ मोल फॉर इथेनॉल दिया हुआ है 2 अपॉन टोटल मोल 2 + 3 हो जाएगा और निकल के आएगा 0.4. ये मोल फ्रैक्शन हो गया. द अदर थिंग्स है यहाँ पे, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273.15 से हम उसे ऐड कर देंगे. 15 अगर नहीं भी हम रखते हैं फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, अगर सेल्सियस में दिया हुआ है और हमें फ़ारेनहाइट में कम कैलकुलेट करना है तो हमें 32 + 9/5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर गिवन इन डिग्री सेल्सियस अगर हम करते हैं तो हमारा फ़ारेनहाइट में निकल के आ जाएगा. याद रखने का थोड़ा एक ट्रिक भी है कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273.15 को मीन्स 1 मोल ऑफ जो भी सेल्सियस में दिया हुआ है उससे हम जोड़ रहे हैं. लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट में करने के लिए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1.8 आएगा. और 1.8 अगर हम 2 के अप्रॉक्स अगर हम ले ले तो 32 प्लस whatever given in temperature given in degree Celsius we are multiplying with 2 means 2 times of temperature given in degree Celsius. तो अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 1 टाइम ऑफ डिग्री सेल्सियस से हमें ऐड करना है, और अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 32 + 2 टाइम्स विथ डिग्री सेल्सियस. 2 टाइम्स मैंने बस इसलिए कहा है क्योंकि हम कंफ्यूज जाते हैं क्वेश्चन में कि 9/5 दिया हुआ है या 5/9 दिया हुआ है. तो अगर 2 टाइम्स दिमाग में रहेगा तो हमें उसे निकालने में इजी होगा कि वो 9/5 है ना कि 5/9 है. ओके, द अनदर थिंग इज मास परसेंट और वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट. तो ये होता है मास ऑफ द सॉल्यूट और बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. एंड ऑल्सो समटाइम्स दे टोल्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन. सो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶. ये मैंने पहले ही बता दिया है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. बट यहाँ पे यह है कि मोल फ्रैक्शन अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 निकल के आता है मेरा 1. और मोलैरिटी में अनदर थिंग ये भी है कि अगर हमें एक का मोलैरिटी पता है, मीन्स हमें एक का कंसंट्रेशन पता है और दूसरे सॉल्यूशन का अगर हमें निकालना है, अगर प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन, तो हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं. मीन्स M1V1 = M2V2. ये एक का है, एक मीन्स एक सॉल्यूशन का M1V1 है, ये दूसरे सॉल्यूशन का M2V2 है. ये दिया हुआ रहेगा कितने लीटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं और दूसरे का हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम पता रहेगा तो हम M1 कैलकुलेट कर सकते हैं या M2 कैलकुलेट कर सकते हैं.
तो ये पहला चैप्टर का शॉर्ट नोट था और बेसिकली जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था, सारे फॉर्मूले थे। ओके, अब आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और देखिए। ओके, बाय।